Right. So yesterday we learned about the centesimal, sexagesimal, circular system. Even though we start the problems also, right? Yeah, exactly. We start the problem also. So today again we are dealing about the measurement of. We are dealing about the measurement of. चलो बेटे तो थोड़ा सा देख लेंगे अभी एक क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चंस बाकी है इसके आज इंशाअल्लाह उल अज़ीम वो ख़त्म करने के बाद विल ट्राई टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री अप टू ट्रांसफॉर्मेशन trigonometry up to transformation. What happened today? Till I rub this board, clean this board, you do one thing. You just write down the question. First problem we did. Now go for the second one. Where it is? Yeah, here it is. 36 degrees. Express the following angles. Write down the question. Write down the questions. Express the following angles. MashaAllah, most of my students are waiting. Yeah, very good morning. चलो बेटे क्वेश्चन लिखिए express the following angles in radian. Express the following angles in radian. Express the following angles in radian. ठीक है ये बोर्ड का इंक सूख गया बेटे इसीलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है my goodness today first of all today is the hard day for me even though body is also not supporting me this time Shh. Allahu Akbar finally I clean up the board. So what did you write? What you have in? What you have write? Express the following. Bismillahir Rahmanir Rahim. Express the following. Express the following angles. Express the following angles in radian. First, 120 degree. Second,
minus 600 degree. Third, minus 144 degree. Right. Perfect. Yes, board is also perfect. I am also perfect. Alhamdulillah. Now I can teach you perfectly. What we have here? Express the following angles. So given shows that it is in degree because every number has a degree sign here. Isn't it or not? Degree में दे दिया और radian find करो बोलो. Just recall that three values what we are equating yesterday. Same. Here we want for this one degree and R for radian. Solution. Since we know that WKT, we know that, right? What we know that degree is in 90s equal to R by pi by 2. R by pi by 2. Now D we have. Since D is equals to 120 degree, D value is given 120 degree. 120 by 90 is equals to 2R by pi. 0 0 get cancelled. 3 0 0 मतलब 10 10 get cancelled. 12 10 9 10 तो 10 10 cancel कर दिए हम. 0 0 कैंसिल कर सकते. 3 3 9, 3 4 12. 3 4s are 12. 4 by 3. 4 by 3. I can write the pi here. 2R. Now again 2 come to the opposite side. 2 pi by 3 into 2 is equals to R. Therefore R is equals to 2 pi by 3. रेडियन में है तो सर डिनोट कर देना पर पावर सी लगाकर. ठीक है. 2 pi c ऊपर छोटा सा c है by 3. ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया ये. For the second bit, what we have now minus 600 degree. Minus 600 degree. Again, same formula. D by 90 is equals to R by pi by 2. D की वैल्यू क्या है? 600 divided by 90 into pi is equals to 2R. ये छोटे छोटे स्टेप है, ये तो लिख सकता हूं ना मैं. 0 0 गेट कैंसल. 3 3 3 2 6 0. Right or wrong? Exactly right. Right. Next, minus 20 by 3 into radian 2R. Again R will come to the opposite side. 2 by 3 into 2 pi c is equals to R. 2 ones 2 tens. Therefore R is equals to minus 10 pi by 3 in radian. ऊपर c अगर लिखे हम तो वो रेडियन कहलाएगा. ठीक है, चलिए लिखिए. माइनस 144 का आंसर आप लोग बोलिए. माइनस 144 का आंसर आप लोग बोलिए. ठीक है. और अगर सपोज आंसर पाई में नहीं दिया, इफ सपोज आंसर इज नॉट इन पाई, then what we have to do? We have to multiply 180. बराबर है ना बेटे? 22 by 7 से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज इट इज इन रेडियन. 22 by 7 है तो कन्वर्ट कर लेना. वैसे आंसर ये पाई का है, आगे मैं आप लोगों को कन्वर्ट करना ही बता देता हूँ. Write it fast, and I want the answer minus 144. Minus 144 is too easy.
minus 144. Mohammad Akram. D by 90 pi by 144. बेटा इज इक्वल्स टू 2r लिखो बेटा, इज इक्वल्स टू 2r लिखना। अच्छा ठीक है, 2r बाई पाई लिखना। ऊपर का एक स्टेप में छोड़ दिया, देखिए आप। You can't do like this, you have to write each and every step at a time itself. Right, minus 8 minus 4 by 5, पाई कहाँ गया बेटे? minus 4 pi, minus 4 pi, minus 4 pi by 5 आना है आंसर। मोहम्मद अकरम। No, Mustafa, correct it. WKT full form is, we know that. Hamad, नहीं बेटा। No, it's not blur, it's blur, it seems. My goodness, I don't think so, but it looks clear in my, yes but everything is clear in my, I'll do one thing, I'll just do it zoom out, okay? minus 4 pi by 5, बहुत अच्छे अकरम। Now it's okay, right? 144 answer you have given. Now we are seeing the next one. This question is finished. Next, write down the question. Write down the next one. Convert 6 radian into degree measures. Convert 6 radian. Convert 6 radian. Convert 6 radian into degree measures. Convert 6 radian into degree measures. Over. Just wait a minute, beta. We are adjusting the camera because most of the students are facing blur problem, okay? Just wait, just for a few minutes.
Now it's perfect. Now it's perfect. Right. So here again it is given radian value and they ask you to convert in degree measures. ठीक है, डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करो बोले इन्होंने. Solution given radian is 6. रेडियन दे दिया 6. अब r की वैल्यू फाइंड करना है, नहीं d में कन्वर्ट करना है. राइट, रेडियन 6 है, d में कन्वर्ट करना है. d by 90 is equals to r by pi by 2. अभी तक हम ग्रेडियंट में नहीं आए, ग्रेड्स में नहीं आए. देखिए ग्रेड्स में नहीं आए. हाँ, अभी हम रेडियन पे ही काम कर रहे हैं, पहले रेडियन पे ही घुमा लेंगे अच्छे से. d by 90 is equals to 2 into r 6 by pi. Since we have the value of r is 6, right, radian value we have 6, that's why I wrote in place of r. Now I can write it as d is equals to 12 into 90 by, here we have 22 by 7 is the value. क्योंकि क्या है ये रेडियन में है ना, इसीलिए 22 by 7. डिग्री में रहा तो 180 डिग्री होता. ठीक है, जैसे हम सर्कुलर में यूज करते हैं. आराम से जाएंगे प्रॉब्लम को, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, समझते हुए आराम से जाएंगे बेटे. नाउ d is equals to 12 9s are 108 108. 90 का ये 0 यहां पर लगा दीजिए, into 7 divided by 22. Again this 7 come to the numerator. d is equals to 2 1s 2 1s, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 0 ऊपर आया था. 540 into 7 divided by 11. सर अब तक नहीं करे थे, अब क्यों कर रहे हैं? Most of the students they will ask in this way, सर अब तक नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि अब तक अगर आपके ऑप्शन में पाई में आंसर दिया तो आप पाई में आंसर छोड़ देना था, और अगर आंसर उन्हें आपके पास डिग्री में लिखा है पूरा कंप्लीट डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है हमको. डिग्री जब भी पूछा उन्हें डिग्री के साथ मिनट आएगा और सेकेंड आएगा, तीनों आएंगे. सिर्फ डिग्री पूछा तो डिग्री में लिख के नहीं छोड़ देंगे हम लोग. सर पहले वाले प्रॉब्लम में पाई, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो आते हैं ना 1 2 3 4 ऑप्शन, कभी कभी 4 के 4 ऑप्शन में क्या करता वो पाई के आंसर रखता, तो एट द टाइम यू स्टॉप देयर. वो वाले क्वेश्चन वैसे थे, उसमें भी रेडियन दिया था, इसमें भी रेडियन दिया, इसमें डिग्री दिया था, इसमें रेडियन दिया. ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, पाई बाई 2, पाई की वैल्यू 22 by 7 अप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई कर लो. d is equals to 5 7 0 0, 7 4 28 का 8, कैरी 2 7 5 35 36 37 37 by 11, 37 by 11. Now what? Now we have to multiply. फिर से चेक कर लीजिए, 7 0 0, 7 4 28 का 8, carry 2 7 by 35 36 37. Right. Now we have to divide 37 80. 11 3s are 33, 4 is left. 8 11 4s are 44, 4 11 0, 11 3s are 33, what is left 7, पॉइंट लगाइए, 0 लीजिए, 11 6 66. पॉइंट से एटलीस्ट 2 डेसिमल लेना, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डेसिमल्स लेना. ठीक है, 4 दिख रहा है ना बेटे पूरा? हाँ कंप्लीट दिख रहा है. राइट, पॉइंट पहले से ही है, 0 लगा लिए. 11 3s अगेन, 11 3s 33, व्हाट इज लेफ्ट 6. अब वो कहानी चलती रहती बेटे, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कहानी चलते रहती.
तो अपन क्या करना, आके रुक जाना बस, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हो गए। d इज इक्वल्स टू हाउ मच, 343.63। कौन सा ये, इन डिग्रीज में है ना, हाँ डिग्रीज में है सर, पॉइंट में आ गया देखिए 343, ओके ये एग्जैक्ट है, लेकिन ये पॉइंट आने के बाद 63 दिया तो ये अप्रोक्सीमेट में हो गया। नाउ वी हैव टू प्रोसीड समवॉट, मींस d is equals to 343 डिग्री प्लस 0.63 डिग्री। अब ये डिग्री हमको पॉइंट्स में जो है उसको डेसिमल को हटाना है, फिर से d is equals to 343 plus 0.63 into, first we have to convert degree with, yes degree in minutes, तो 60 minutes। एक छोटा डैश आता है ऊपर, ये जो डैश है ये डैश मिनट के सिंबल है, वो मिनट्स के साइन है। नाउ अगेन 343 डिग्री प्लस, मल्टीप्लाई करो बेटे 0.63 इंटू 60, कहाँ करो रफ वर्क, कहाँ कर लूं, यहां कर लूं, ठीक है 0.63 लग रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यस सर सर दिख रहा है, इंटू 60 का मैं 6 0 छुपा लिया समझिए, 6 3 is 18, 0 छुप गया समझिए, ठीक है यहाँ पर 0 जो था मैं वो छुपा लिया। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 6 3 is 18 का 8 कैरी 1, 6 6 36 37 के 37, यहाँ 0 लगाते हैं, यहाँ 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया 37.80। Now we can write 37.80 minutes। अरे ये क्या हो गया भाई, फिर से डेसिमल के साथ और एक डेसिमल। Now we have to convert it into seconds। 343 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 0.80 into 60 seconds। क्या करें आप, फिर से जैसा यहाँ पे पॉइंट को आप स्प्लिट करे थे करके मिनट से 60 से मल्टीप्लाई करें, वो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 में मल्टीप्लाई करें। 343 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस मल्टीप्लाई कर लो बेटे फिर से एक बार, 8 6 48 होता ना, डायरेक्ट कर डालेंगे ना, 0 इंटू 6 0 0 6 8 48, यहाँ का 0 यहाँ पर एक 0, पॉइंट के बाद 2 48 seconds। Therefore we can write it as 340 डिग्री 37, बीच में कोई साइन नहीं है देखो, 37 मिनट्स 48 सेकेंड्स, ऐसा लिखना, मैं साइड में लिख देना अप्रोक्सीमेट, हम अप्रोक्सीमेट में लिए बिकॉज वी स्टॉप आफ्टर 2 डेसिमल। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, जस्ट खाली फोकस करिए। यहाँ से ये तो हमारा पुराना ही था पूरा कंप्लीट, हम पूरा पुराना ही पढ़ते आए थे, यहाँ पर आके रुक गए। अब as I said you in my first class, in my previous class, whenever they gives you in degree, so we have convert it into minute as well as in seconds, so complete answer is in minute and result पूरा आ गया। देखिए अप्रोक्सीमेट में आंसर लिख दो बेटे, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। $37.8, Noman, I think you are all doing 48, you are all using, no need to mention beta, no need to mention when we are writing, no need to mention, okay। यस मुस्तफा, अगर मिनट में डेसिमल हट जाए तो उसको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट
नो नीड डेसिमल में आया तो ही कन्वर्ट करना है बेटे. इफ वी गॉट डेसिमल्स देन ओनली वी हैव टू कन्वर्ट इट, otherwise no need to go for seconds. Okay, you can stop there. And the next question is, what is this? Sir, everything is clear. Finish. Sir, when it goes wrong, it went wrong. Which one? I have done. You can see. Who is that one? You do it. You do it at home and send it to me. You do it at home and send it to me. If you have any doubt, you can ask me. Yeah, I moved the site. अगर नहीं आया तो नहीं करना. No need to do. Okay. चलो बेटे बस. सर पाई में क्वेश्चन पूछा तो 12 पाई रेडियन नहीं आता. डोंट. हाँ राइट. आंसर देख लेना बेटे. ऑप्शन में क्या है देख लेना बस. ऑप्शन में क्या है देखना, उसके बाद प्रॉब्लम अपने हिसाब से उसमें कन्वर्ट कर लेना. फिनिश्ड. ऑप्शंस किसमें है देख लो पहले. फर्स्ट जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस. इफ यू हैव द ऑप्शन इन पाई, no need to write pi value 22/7. No need to write pi value, that is 22/7. If they give the answer in minutes and decimals, degree and seconds, so you have to convert it. Over. (45° is equals to dash grades. अब आ जाओ. अब तक रेडियन और डिग्री पे खेल लिए, अब थोड़ा ग्रेड्स पे खेलेंगे. क्या बेटे डिग्री है तो मैं ये इसको सेम रखूंगा. दिस विल बी चेंज. What we have? Gradient G by 100. Exactly. Yeah. Can anyone solve this problem? What is given here? 45 degrees given. So this is D value. So I write 45 degree by 90 is equals to G by 100. 45 ones are 45, 45 twos are. Now this comes to the opposite side. 100 by 2 is equals to gradient. 2 ones, 2 50s. Therefore, G value we got 50. So 50 grades we have. 50 grades we have. Abu Tala, very good. Mustafa, excellent beta. Noman, very good. Next, one more question I am going to give you. You have to solve it and send the answers. Not answers, send the picture of your notes. Send the pictures of your notes. Send the pictures of the notes. Write down convert
330 degree into radian. Convert 330 degree into radian. And your options are, these are your options: 9 pi by 3, 11 pi by 3, pi by 6, 11 pi by 6. 4 options are here. Simplify and give me the answer fast. Do it fast. I'm waiting for the answer. Everyone should reply. Solve this problem. Take the degree and radian part. Options are given you. Eleven pi. बेटे 11 कहाँ गया बेटे अकरम? 11 नहीं लिखे बेटे आप नीचे आंसर में अकरम. And the next one, Mutahar Ali, you send the answer. Muzammil is also, but I said you to, but I said you to send the pictures. Yeah, 11 pi by 6. सादत अली खान -4/5. बेटे कौन सा आंसर भेजना था, कौन सा भेजना सादत अली? Yes, 11 pi by 6 enough. Next, go for the next one. Yes, wait, go for the next one. अब मैं किसी का आंसर नहीं देखने वाला हूं. Don't send me the answers. बाद में चेक कर लूंगा मैं. कोई अगर गलत करे हैं तो कॉपी कर लीजिए. Because Akram sent the answer properly in one group and Muzammal Ali is also sent the proper answer in another group. 2 groups are there. One is Charminar group, one is overall group. 2 ग्रुप्स है. एक ग्रुप में अकरम का आंसर आ गया और एक 2 लड़के भी और भेजा है, उनके नाम नहीं मालूम मेरे को, और एक में मुजम्मिल आंसर भेजा है. देखिए, ठीक है. नाउ राइट डाउन. कन्वर्ट 40 degree. Convert 43 degree, 6 minutes, 6 minutes and 9 seconds. 9 seconds to radian. रेडियन में चेक करो. अरे ये क्या हो गया यार? अब तक तो सिर्फ हमको एक ही दे रहा था, या डिग्री, रेडियन या कभी कभी ग्रेड्स, बट हियर 43 डिग्री, 6 minutes, 9 seconds. Yes, it's somewhat interesting problem. You can say, yeah, exactly this one is, because just now we solved the problem. 343 degree, 37 minutes
48 seconds approximately, isn't it or not? यही था ना, तो वही तो है, 3 गैप कर दिया ना, 3 गैप कर दिया ना, 37 की जगह पे 6 मिनट्स दिया है, 48 की जगह पे 9 सेकंड्स दिया है, दैट सिंपल यार, जस्ट मैथ्स के साथ खेलो बस खलास। चलो पहले खेलने से पहले इधर आ तो जाओ, रेडियन में कन्वर्ट करना है वो बाद में सोचेंगे। व्हाट इज गिवन हियर? 43 डिग्री 6 मिनट 9 seconds. How we can write 43 degree? We can't do anything. Plus 6 minutes means 6 by मिनट में कितने रहते? 60, मालूम है ना, बराबर है। प्लस 9 seconds में 60 into 60, राइट, 3600 seconds होते हैं। साथ में 6 मिनट मीन्स आ गया, गॉट इट, 6 मिनट 1 by 60 यहां पर। नेक्स्ट 43 डिग्री प्लस 1 by 10 प्लस 3 3s are 3 2s, again 3 1s 3 2s, okay right, 1 by 20 into 20 400. Now what 43 degree plus 0.1 plus 1 by 400 क्या होता है बेटे? आप लोग डिवाइड कर लीजिए, 0.0025 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 43 डिग्री प्लस 0.1, तो क्या हो जाएगा देखो ये 43.1025 now in which we have to convert it, yes, for radian 43.1025 into pi by 180, pi by 180, पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर क्या है, 43.1025 into 22/7 into 180, सिंप्लीफाई कर लेना पूरा कंप्लीट, ये एक आंसर आ जाता। ठीक है, जब आप लोगों के पास एग्जाम में जरूरत पड़ती, ये हमारे आईपी के लिए नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं आंसर 0.725 रेडियन है, ये 0.725, 0.752 है। ट्राई करिए, कंप्लीट करिए, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर मैं हूं कैसा भी, जल्दी खत्म करिए, चलिए डू इट फास्ट। वे एक क्वेश्चन बच गया है, वो हम बात करेंगे सरकम में। Please explain once again. Okay, okay, right. I will explain you. First, stop typing the messages. Stop typing the messages. First, write down. हाँ बेटे, I will explain you 0.0025 how it comes 1 by 400. I will explain you. Okay. बस दो बच्चों के दो डाउट है, एक कि पूरा प्रॉब्लम समझाओ बोले, एक और एक कि 1 by 400 how it becomes 0.0025. I will explain these two doubts. Wait. सर आप 2 times क्यों लिखे? बेटे देखो, मिनट में हम 60 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड्स में हम 60 into 60 से करेंगे, ठीक है। सेकेंड में क्या रहता, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट ना, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, सेकेंड्स में 3600 करेंगे। वही यहाँ पर देखिए, उसको एग्जाम थोड़ा कंज्यूम करके लिख दिया, यू विल राइट, यू राइट हियर टिल नाउ, till here you write, then I'll explain you once again.
Just look at the word given 43 degree 6 minutes and 9 seconds. So between these there is a plus sign, because when the degree comes means along the degree minutes and second will be the decimal point. मालूम है ना, वो तो decimal में रहेंगे ना, तो उसको decimal में लाने के लिए क्या करते हैं हम, 6 मिनट है, तो अगर सपोज ऐसा अगर मेरा आंसर होता, सिंपल सी बात है, ये पूरा डिग्री है मेरा, ये पूरा डिग्री है, देखिए देख लो बेटे, बाद में किसी का डाउट क्लियर नहीं करूंगा मैं। 43 डिग्री 1025 43.1025, चलो राइट, 43 डिग्री प्लस 0.1025, अब ये डिग्री था, 43 डिग्री प्लस 0.1025 इंटू, अब ये डिग्री को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ पर वो पहले से ही मिनट में दे दिया था, तो हम डेसिमल लाने के लिए उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय 60 से। ओके राइट, नाउ आई ट्राई टू मल्टीप्लाई इट, 43 डिग्री प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30 का 0, कैरी 3 6 12 13 14 का 14, 6 1 6, फिर 0.0 एज इट इज, 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट है 1 2 3 पॉइंट, राइट, ये मिनट में है। देखिए 43 डिग्री प्लस 0 पॉइंट, अब 0 पॉइंट मतलब इधर आ जाए ना, वो 6 पॉइंट में आ जाता है, देखो आंसर 6.14। अब फिर इसको फिर कन्वर्ट करना है, 43 डिग्री प्लस 6 मिनट, नहीं है, आ गया साहब, सही बोले थे आप, 0.14 मिनट में है। इसको फिर से हमको क्या करने का है, 43 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 0.14 इंटू 60 सेकेंड्स, तो एक बार 60 यहाँ हुआ, एक बार 60 यहाँ हुआ, सेकेंड में लाने के लिए 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसीलिए यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट दिस मिनट्स इनटू डेसिमल, कितना था डिग्री, दिस सेकेंड्स इनटू 3600, दिस सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 36, दिस 9 seconds divided by 3600, 3600, how much degree it will be, तो यहां से सब मालूम हो रहा, देखिए अब ये 43 डिग्री 6 मिनट आ गया हमारा वहां तक, 43 डिग्री 6 मिनट्स, अब मल्टीप्लाई करो, 14 6 मल्टीप्लाई, 14 6 4 6 28 का 8, कैरी 2 7 8 8, देखिए 0.88 सेकेंड, उसको उन्हें अप्रोक्सीमेट में 9 लिख दिया, 0.88 को 9 सेकेंड लिख दिया उन्हें अप्रोक्सीमेट में। क्या करें हम, ये जो हमारा कंप्लीट डिग्री मिनट सेकेंड था, उसको पूरा कंप्लीट डिग्री क्या था वो लेकर आए, उसके बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। चलिए ये क्वेश्चन था आपका अम्मा, हो गया, देखिए राइट। अब एक क्वेश्चन आपका है ना बाबा, 1/400 हाउ इट बिकम्स, बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर हम सीधे से उल्टा फिर उल्टे से सीधा कैसा कर सकते। Here they given you the degree in times and second, so you convert the complete in degree, then you multiply with radian to get the radian value, right? Now again वही क्वेश्चन को मैं क्या करा, देखिए वही सोल्यूशन जो हम निकाले थे, डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया, नाउ आई गॉट द क्वेश्चन एज सेम, 43 डिग्री 6 मिनट 0.88 सेकेंड्स को वो अप्रोक्सीमेट में 9 सेकेंड्स लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपके पास है ना ये, वन टू थ्री क्लिक, राइट। चलिए अब एक और एक क्वेश्चन था हमारे नोमान स्टूडेंट का। नोमान नाम के बच्चे बहुत अक्लमंद होते हैं, सुना था मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद है ही आप, क्योंकि हजरत नोमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जो ताबईन हैं, नोमान बिन साबित जिसको अबू हनीफा के नाम से जाना जाता है, तो अल्लाह ताला आपकी इल्म में फहम में इजाफा पता फरमाए। चलिए बेटे, सर 1/400 कैसा आता, नहीं पूछना कभी भी, क्यों नहीं पूछना भाई, क्यों पूछते आप, आपको डिवाइड करने नहीं आता, 400 को 1 से डिवाइड करना है,
नहीं आता? आता नहीं आता? नहीं सर नहीं आता। मेरे पास 1 रुपया है, मैं 400 लोगों में कैसा बांटूं? बांटना पड़ता है आपको, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। क्या करूं सर फिर मैं? पॉइंट लगाओ जी, लगा लिया, 0 हो गया। क्या बन गया ये सर? 10 बनाना सर, मेरे पास 400 है। ओ माय गुडनेस, एग्जैक्टली। पॉइंट लगा के आप एक ही 0 ले सकते, पॉइंट लगा के आप एक ही 0 ले सकते एट वन प्लेस, एक प्लेस पे, ठीक है, यहीं पर। एट ए टाइम यू कैन टेक ओनली 1 0, एट ए टाइम यू कैन टेक ओनली 1 0 व्हेन यू पुट अ पॉइंट। अब मैं यहाँ पर 0 लगाया तो तब भी देखिए सर 100 ही हुआ। मेरे को डिवाइड करना है 400 में। मैं बोलेगा ठीक है बेटा, एक और एक 0 लगा लो। हाँ सर, ये बन गया 1000। नाउ आई कैन डिवाइड। हाँ बोले बेटे, 400 वन जा 400, 400 टू जा 800, 400 टू 800, 002। सर फिर तो छोटा हो गया ना, पहले से पॉइंट था ना, आप एक 0 ले सकते, पॉइंट है ना, एक 0, 2000 कब आता? 5 से आता सर। जी हाँ, राइट सर, राइट, एग्जैक्टली। 0 पॉइंट। अब ये पॉइंट को दिखाने के लिए हम पहले 0 लिखते, ये पॉइंट को, ये पॉइंट थोड़ा हमारा विजिबल होना, क्योंकि अगर आप खाली ऐसा लिखेंगे पॉइंट 0025, उन्हें क्या बोलता है 0025, ये पॉइंट छुप जाता कहीं और जाके। सपोज अगर आप सिंगल रूल लाइन है, सिंगल रूल लाइन में अगर आप पॉइंट यहाँ डाल दिए, बोले क्या है वो 0025, कहीं भी लिखे 25 लिख सकते थे ना, कहीं को ऐसा करे होंगे सर। ये 0 को विजिबल करने के लिए वी आर टेकिंग पॉइंट से पहले 0। हो गया क्वेश्चंस? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप लोग घर में करके लेकर आना, ठीक है? वैसे तो पूरे JEE के ही थे। एक और एक क्वेश्चन है होमवर्क में, राइट डाउन। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस 1.2 रेडियन, express 1.2 radian in degree measures. Express 1.2 radian in degree measures. डिग्री में कन्वर्ट करो बोला मैं आप लोगों को, ठीक है? डिग्री में कन्वर्ट करके बताइए अब। एक्सप्रेस 1.2 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब नहीं करना, होमवर्क में करना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है? ये पूरे हमारे रेडियन, ग्रेड्स और डिग्री पर थे। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज सर्कुलर। उसके एक दो क्वेश्चन करो, समझ में आ जाता। कहाँ है भाई? यहाँ का। चल, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ। Next question. Write down the question. I'm not going to write on the board. I'm just dictating you. You must to write. Find the length of an arc. Find the length of an arc. Arc. A-R-C. A-R-C. Arc. Find the length of an. Find the length of an arc. ARC. Here I have written on the board. You can see your screens. You can see on your screens I have written arc. Find the length of an arc of a circle, of a circle, of a circle, of a circle of radius 5 centimeter, of a circle of radius, of a circle of radius, of a circle of radius 5 centimeters, subtending, S-U-B-T-E-N-D-I-N-G, S-U-B-T-E-N-D-I-N-G, subtending a central angle
subtending a central 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 angle, subtending a central angle at 15 degree, at 15 degree. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आ जाइए। छोटा सा एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। सॉल्यूशन गिवन radius r is equals to 5 centimeter and theta is equals to how much? 15 degree। ठीक है, 15 डिग्री है। चलो बेटा, ये मेरा सर्कल है ये सेंटर से ये अगर हम देखेंगे ये हमारी इनिशियल साइड है और रेडियस दे दिया उन्हें 5। उन्हें क्या बोला, एक 15 डिग्री का अगर हम ऐसा एंगल लेंगे, 15 डिग्री का अगर हम ऐसा एंगल लेंगे तो इसका एरिया, इसका जो एरिया है ये एरिया क्या है पूछा। ठीक है, अब हम एरिया को किससे डिनोट करते बेटे, लेंथ को किससे डिनोट करे थे, बाहर की जो लेंथ है, बाहर का ये तो जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है पूछे उन्होंने हमको क्वेश्चन में। देखो सबसे आसान है ना, ये सेंटर है, ये सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट ले लिए, सॉल्व कर लिए, फिनिश्ड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, when we are learning about the when we are reading about the circular problem, so simply you can just recollect the words what I have said you. Whenever they give you degree, you have to convert in radian because the circular system is in radian. Right or wrong? Yes sir, right. चलो तो पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट दिस डिग्री 15 into पाई बाय 180, पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये रेडियन, पाई बाय 180 ना, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 6 क्या होता 3, 15 2 जा 30, थीटा वैल्यू इज पाई बाय 12, रेडियन में कन्वर्ट हो गई। Now what we have to find? S value. So since we know that, अगर आपको नहीं पता चला कि WKT का फुल फॉर्म क्या है तो समझ जाइए कि वहीद सर knows that. Since वहीद सर, W for वहीद, myself, वहीद सर know that, right? तो क्या मालूम मेरे को, थीटा is equals to S by R. S by R इस पढ़े ना, क्या फाइंड करना है ये, यहाँ पर आप चाहे तो S लिख लीजिए या फिर आप L लिख लीजिए लेंथ के लिए। तो अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटे इन रेडियंस, पाई बाय 12 इज इक्वल टू S तो हमको फाइंड करना है, S तो हमको फाइंड करना है, डिवाइड बाय R वेयर इज इट 5 सेंटीमीटर विच इम्प्लाइज 5 पाई बाय 12 इज इक्वल टू S। Therefore S is equals to 5 pi by 12 in centimeters। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में JEE में आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कैसा, फाइंड द, नहीं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, या फिर इफ there is a circle whose radius is 5। क्वेश्चन सुनिए, लास्ट टाइम पे कुछ मेरे को ऐसे संडे के दिन जो एग्जाम हुआ उसमें कुछ मेरे को कैसे कॉल आके पूछा गया था कि सर इसका आंसर कैसे लिखना है, तो ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, if there is a circle whose radius is 5, if there is a circle whose radius is 5 and theta is 15 degree, full stop कर देता हूँ, then what is the length of the arc dash। अब नीचे ऑप्शन ही नहीं रहते, कंफ्यूज होते हैं अपना, अरे ऑप्शन नहीं दिया भाई, डैश दे दिया। अब डैश में अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेंगे OMR में तो डैश नहीं है ना वहां पर,
अब वहां पे क्या आप OMR के ऊपर बबल जहां होने वाले हैं बबल के पास लिखते क्या आप? तब ऐसे क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते। देखिए कभी कभी क्या करता हूं, इफ सबसे आसान क्वेश्चन है, इफ सर्कल इज गिवन एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 15 पूरा, देन द वैल्यू वी देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ 5 पाई बाय 12? आंसर दिया था, यूनिट्स क्या है इसके? सेंटीमीटर लेना रहता खाली, बस cm, दैट्स इट। क्वेश्चन को खाली ट्विस्ट करके घुमाता बेटे उन्हें। चलिए आराम से लिख लीजिए पहले, राइट डाउन। है बेटे, JEE मेंस में ये चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। इज दिस ओवर? इज दिस ओवर? फिनिश इट फास्ट। Shall I proceed it? Now go for the next one. Go for the next one. Find the degree. Find the degree. Find the degree. The angle subtended. Find the degree. The angle subtended. Find the degree. The angle subtended. 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 Find the length. क्या लिखे आप? Find the degree. Find the degrees. The angle subtended at the center of a circle. At the center. At the center. Find the degrees. The angle subtended at the center of a circle. Of a circle. ठीक है बेटे, ठीक है, लिखे चलो क्वेश्चन। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये बच्चे हमारे, दिमाग एक जगह रखना, लिखते वक्त में दिमाग एक जगह रखना। योर माइंड, आई, हैंड, MEH या फिर HEM या फिर
MHE तीनों एक जगह रहना, माइंड, हैंड एंड आइज। एक भी चीज चूक गए तो आपको डिक्टेशन में लिखने नहीं आता। फाइंड इन डिग्रीज, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल। चलता बेटे, फाइंड द डिग्रीज लिखो, फाइंड इन डिग्रीज लिखो, नो वे, परेशान मत होइए। फाइंड द डिग्रीज लिखो या फाइंड इन डिग्रीज लिखो। द एंगल subtended at the circle, at the center of a circle of diameter 50 centimeters, 50 centimeters by an arc, ARC, by an arc of length, 11 centimeters, 11 centimeters। अब आपको यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करो बोले हो, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, आपको हम क्या बताएंगे यहाँ पर। गिवन लिख लेंगे पहले, गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, d इज इक्वल्स टू 50। जब d अगर 50 आएगा, d मतलब डायमीटर, डायमीटर किससे बोलेंगे आप, व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका पूरे का पूरा ये कितना है बोले ना, 50 सेंटीमीटर है बोले। तो रेडियस कितना होता बेटे, d/2 होता। रेडियस इज इक्वल्स टू 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर आ गया। 25 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, r की वैल्यू आ गई। अब s क्या दिया, 11 सेंटीमीटर दे दिया, 11 सेंटीमीटर्स। नाउ व्हाट वी हैव, they ask you to find in degrees, so therefore we know that theta is equals to s/r। इन रेडियन में है ना, वो रेडियन में है, हमको डिग्री में होना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू, s की वैल्यू क्या है बेटे, 11 है, r की वैल्यू क्या है, 25 है। अब रेडियन को कैसा कन्वर्ट करते हैं हम, 180/पाई, 180/पाई इन रेडियन जाके डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 11/25 इंटू 180/22/7 होता, वो 7 को मैं यहाँ पर ला लिया डायरेक्ट, रिमेम्बर 22/7 होता ये। 22/7 को हम क्या करें, 22 यहाँ लिखे, 7 को ऊपर लेकर आ गए। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। क्या बच गया बेटे, क्या बच गया आप, थीटा इज इक्वल्स टू 90 इंटू 7/25 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, बराबर है, हाँ बराबर है। नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे अब, थीटा इज इक्वल्स टू 18 7 जा 7 8 जा 56, 5 7 7 120, बराबर है। 18 इंटू 7, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 जा 7, 8 9 10 11 12, 126 राइट है बेटे। 126/5, थीटा इज इक्वल्स टू 126/5 डिग्री आ गया। किसमें कन्वर्ट करना है, इन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, राइट, यस डिग्री में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्टली हो गया डिग्री में कन्वर्ट। अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख लो, थीटा इज इक्वल्स टू 25 1/5। ऐसा भी यहाँ पर भी आंसर रोक सकते हैं आप, जहां पर ऐसे 3 लाइन आते समझ जाना कि सर का आंसर हो गया। 25 5 125, 1 + 1 126। You can write in mixed fraction or you can stop here also। इन डिग्रीज में ला वाला डिग्रीज में ला दिए। अब अगर उन्हें क्वेश्चन में अगर डिग्रीज मिनट्स भी अगर पूछा तो इसको डिवाइड करना, पॉइंट में जो वैल्यू आएंगे
वो पॉइंट के वैल्यू को हम इंटू 60 करेंगे तो मिनट आएगा, फिर इंटू 60 करेंगे तो सेकेंड आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ डिग्री पूछा था, सो वी स्टॉप हियर। अगर वो पूछा डिग्री के साथ कन्वर्ट फाइंड इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड, तब क्या करना है, इसको आप डिवाइड करना, पॉइंट में जितने वैल्यूज आते हैं उन लोगों को 60 से मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर पॉइंट्स अगर आया तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करना। मालूम है ना, वो तो कर लेना क्वेश्चन। तो आंसर यहीं पे रोक दो, बस इतना काफी है हमारे लिए, रुक सकते हैं हम यहाँ पर। वो भी लिख दे रहा हूं, देखिए मैं आप लोगों के लिए। और अगर वो मिनट ने पूछा तो 25 डिग्री तो बाहर आ जाता 1/5 इंटू, क्योंकि ये 0.2 होने वाला था, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया 1.5 इंटू 60 मिनट्स। 12 5 5 5 2 12 बराबर 12 60 25 डिग्री 12 मिनट्स। देखो बेटे मिनट्स में आ गया, हम सेकंड में गए ही नहीं क्योंकि डेसिमल में नहीं आया। तो अकरम को और किसी को डाउट आया था ना, नोमान को भी आया था शायद, सर अगर सेकंड मिनट्स में अगर डेसिमल नहीं आए तो रुक जाना क्या। देखो बेटे डेसिमल में नहीं आया, रुक गया मैं, 25 डिग्री 12 मिनट्स। सो ये टाइप के क्वेश्चंस पूरे हमारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते JEE मेंस में, और मेंसुरेशंस मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो वी कंप्लीटेड द कंप्लीट पार्ट एंड द कंप्लीट चैप्टर नहीं बोलते इसको, छोटे से टॉपिक दिया था वो, ताकि हमको पता चले कि हाँ भाई ये भी एक टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम हमारा बना सकते हैं ना, हम सपोज यहाँ पर मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सपोज ऐसा ये बन गया। ये अगर 11 सेंटीमीटर है और रेडियस हम 25 लिए तो डिग्री कितनी हुई बेटे हमारी, 25 डिग्री 12 मिनट्स की हुई। सिंपल। इंशाअल्लाह अज़ीम कल हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कल इंट्रोडक्शन अगर कोई मिस किया तो उसी के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी बेटे। बेटा देखिए कौन है ये, 11 में 25 इंटू 180 बाई, हाँ ठीक है। Hamad, where are you? Yes, here. Hamad, what is given here? We have only radius. Hamad, look at the word and the persons who have doubt here. Hamad को यहाँ पर डाउट आया, सर आप R निकाले डिग्री लगाने के लिए, ये क्या करें आप, ठीक है ठीक है मैं बता रहा हूँ। रेडियस हमारा था क्या 25, हमने 25 R की प्लेस में ले लिया, और हमारी जो साइड के आर्क की जो लेंथ थी वो 11 थी, वो मैंने ले लिया। S बाई R के हिसाब से, S बाई R के हिसाब से S की वैल्यू 11, R की वैल्यू 25 वी रोट। नाउ व्हाट वी हैव हियर, वी हैव रेडियन। ये रेडियन में दिया ना, वो सर्कुलर में है ना बेटे, रेडियन में दिया ना, तो क्या लॉ बोला, डिग्री लॉ बोला। देखिए डिग्री लॉ बोला ना, डिग्री थीटा डिग्री का ही बोलेंगे ना, डिग्री लॉ बोले। तो हम क्या करें, R निकाल के डिग्री लगाते 180 बाई पाई, और अगर डिग्री निकाले आप R लगाए तो पाई बाई 180, दैट्स इट। अगर R आया तो पाई ऊपर, और अगर डिग्री आया तो पाई नीचे, ऐसे याद रखना। डिग्री आया तो पाई नीचे, R आया तो पाई ऊपर, फिनिश। इसके बाद मल्टीप्लाई, ये तो सिंप्लीफिकेशन आता है आप लोगों को, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट और कौन है बेटे, यस सर डन ओवर। व्हाट इज दिस, अच्छा ये प्रॉब्लम बच्चा पूछा था बेटे, क्या बात है इतने पूरे मैसेज। नोमान क्या लिखे क्या डिलीट करे, नोमान it's right once you check. Yeah sir, I am very excited from TMRS trigonometry class. okay कंफ्यूज थे, चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो नहीं होना कंफ्यूज, पढ़ाई के टाइम पे नहीं होना। हम्माद डिड यू गॉट बेटा, मुताहिर अली वेरी गुड बेटे। जरा एक मैसेज का रिप्लाई देते हैं। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट हैपेंड जहीर, क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया, बोलिए बेटा। वंस अगेन आई कांट एक्सप्लेन, मैं 3 बार एक्सप्लेन कर दिया, अब आप ना 20 बार समझना चाहते हैं और मुझसे ही सुनना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो।
whatever we are going to upload it. Okay, sir, why we are not taking 2 pi? Why should we take 2 pi? 2 pi by 2r by pi क्यों नहीं लिए बोल रहे हैं आप? Why should we take? हम कहां पर आ गए अब? हमको लेंथ फाइंड करो बोला, वो रेडियन फाइंड करो नहीं बोला ना। रेडियन फाइंड करना रहा, डिग्री दिया तो करते थे हम, हमको डिग्री दे, डिग्री की वैल्यू फाइंड करो बोले, वो बोले ना। और लेंथ दे दिया ना बेटे, लेंथ दे दिया यहाँ पर हमारे पास लेंथ आ गया, आर्क आ गया, आर्क आ गया तो हमको रेडियन फाइंड करना नहीं है। हम रेडियन में एंटर हो गए, हम एक एरिया में एंटर हो गए, अब हमको एरिया के अंदर प्लॉटिंग करना है। आप बोल रहे हैं कि सर पहले जमीन देखो, जमीन देखो। मैं जमीन खरीद लिया, ये जमीन हो गई मेरी, दैट मींस वी आर इन सर्कुलर सिस्टम, वी डोंट वांट टू फाइंड द रेडियन वैल्यू हियर। व्हाट इज गिवन हियर? सेंटीमीटर। व्हाट इज सेंटीमीटर? सर्कुलर सर्कल इज देयर, एक आपको दे दिया सेंटीमीटर आ गया और रेडियस आ गया, रेडियस और सेंटर दे दिया। हम 2 पाई लिख के क्या करेंगे बोलिए आप? अगर वहां पर सिर्फ उन्हें कन्वर्ट करो बोला ना तो 2 पाई 2r by पाई लिखना है। ओके बेटे जहीर, गॉट इट? नाउ योर डाउट इज क्लियर? सर कैन यू प्लीज मूव? मैं हट ही गया था बेटे, बच्चे जबरदस्ती खींच के लेके आए थे उनके सामने। नेक्स्ट सर, डन सर, डन सर। सर कैन यू प्लीज, यस मूव। और क्या है सर? अगर डिग्री आ गया तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना सर? क्या डिग्री आया तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है? कहां पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है? पहले वाला प्रॉब्लम हम डिग्री में करे थे, डिग्री दिया था, लेंथ लेकर आए, इसमें लेंथ दे दिया, हम डिग्री लेकर आए। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता। आप ना आपके हिसाब से मत सोचिए, परेशान होते हैं। ठीक है, हो गया बेटे जहीर, हो गया? नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर नॉट यूजिंग 2 पाई? यस, आगे पीछे घुमा रहा सिर्फ उन्हें और कुछ भी नहीं, परेशान होना। समझ गए बेटे? अगर आपके पास जहीर वंस अगेन, अगर आपके पास उन्हें दे दिया कि लेंथ इन सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सेक्टर, समझ जाना कि अब आपको यहाँ पे 2 पाई का फॉर्मूला यूज करना नहीं है, थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। अगर सिंपल इतना दिया, आई हैव गिवन यू द डिग्री एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन रेडियन, तब आप d by 90 2r by पाई यूज करो। ठीक है बेटे जहीर, डन? चलो नेक्स्ट, आज के लिए इतना काफी है बेटे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे ना। टाइम भी हो गया, मेरी सेकेंडरी क्लास शुरू हो गई, बच्चे इंतजार में हैं। सो homework, one of my students sent me the homework also, 1.2 2.4 into 90, 11.45, 11.7। क्या है बेटे आंसर? जरा चेक कर लो बेटे, थोड़ा मेरे को डाउट दिख रहा है आपके आंसर में। जो एक मैं होमवर्क दिया था आप लोगों को 1.2 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में, आप करके भी जाए, आधा सही है, थोड़ा और आधे से आपको चेक करना है। ठीक है, इट्स जस्ट कैलकुलेशन। चलिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय सुधीर, बाय सुधाकर। बेटे अब बस मैसेजेस को इन्हें भेजना। हाँ चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।